Hello everyone, welcome back. Well, I know that we are meeting after a very long time, as we know that due to the prevailing situations, as these kind of antecedent circumstances which are happening very first time in our life. So we have to take care about ourselves more than before. So please take care of yourself as well as the loved ones. So as far as the syllabus of class 12th economics is concerned, we have almost done, except this one unit which is still remaining, and this is none other than the developmental strategies, the developmental or the comparative developmental experience of India and its neighbors. So here we are going to begin. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जितनी भी तरक्की, जितनी भी वृद्धि दुनिया भर की इकोनॉमी में हुई है, उसकी वजह है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण ने एटलीस्ट पिछले 2-3 दशकों में जो ट्रेड है, जो इकोनॉमी है, उसकी दिशा और दशा काफ़ी बदली है। अब आप देखेंगे कि बहुत सारी इकोनॉमीज़ ने अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए रीजनल ब्लॉक्स, ट्रेडिंग ब्लॉक्स बनाने शुरू कर दिए। से फॉर एग्जांपल सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, ब्रिक्स, यूरोपियन यूनियन, etc. These are some of the examples which are showing the regional interest of so many countries, not only for the developed countries as well as the developing countries as well. G8, G5, G20, G77, like this. यहाँ पर हमें एक और चीज़ समझनी है कि हम अपनी डेवलपमेंट को तो देखते ही हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन ने हमें ईज कर दिया। नाउ द थिंग्स आर वेरी इजी टू टेक अ क्लोज लुक ओवर द अदर्स डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज, से फॉर एग्जांपल आवर नेबर्स। क्योंकि हम अपने पड़ोसियों की जब स्ट्रेटजीज पर ध्यान देते हैं तो उससे हमें कंपटीशन में बने रहने में मदद मिलती है और अपनी स्ट्रेटजी को भी मॉडिफाई करने का मौका मिलता है। इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर, जो कि लास्ट यूनिट है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12th इकोनॉमिक्स का, हम इसी पर बात करेंगे कि डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज फॉलोड बाय इंडिया एंड इट्स लार्जेस्ट 2 नेशंस, दैट इज द चाइना एंड पाकिस्तान। वी नो दैट मोर और लेस these 3 economies have same physical endowments, but they are following the different political system. On one hand, India is the largest democratic nation of the world, having a flexible constitution as well, secular status, whereas the Pakistan is following the militarist political powers structure, and China is the command economy. But from the recent years, the Pakistan have also shown a shifting from the militarist structure towards the establishment of democratic structure, and China has also showing the liberal attitude in terms of economic restructuring. So here we begin. First, we will take a snapshot view of developmental path of these nations. As we know that in our course of study, we have been discussed the developmental strategy of India in detail so far. So in this chapter, we will be focusing towards the Pakistan and China's, and we will have the comparison from India as well. So as far as the developmental path is concerned, all the countries, all these 3 countries
they have started their developmental path at the same time, where India and Pakistan got freedom from Britishers in 1947 and they became independent nations. Okay, and China became the People's Republic of China in 1949. तो इंडिया और पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुए 1947 में और एक अलग राज्य बन गए, एक अलग देश बन गए, और चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना 1949 में. ठीक है. सेकेंड फीचर जो हम देखेंगे इसमें वो है दे हैड प्लान्ड देयर डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज इन सिमिलर वेज. यहाँ सिमिलर वेज का मतलब है कि तीनों ही नेशंस ने 5 ईयर प्लानिंग को अडॉप्ट किया. जहां पर इंडिया में पहली 5 ईयर प्लानिंग कब हुई? 1951 में. 1951 इंडिया, ओके. 1953 चाइना एंड 1956 पाकिस्तान. They introduced their first 5 year plan respectively. पाकिस्तान में आज 5 ईयर प्लान को मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान कहा जाता है. कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि 5 ईयर प्लान को पाकिस्तान में क्या कहते हैं. सो मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान. इसके बाद टिल 80s ऑल हैड सिमिलर ग्रोथ रेट्स. देखिए जो इंडिया और पाकिस्तान है, they followed the same economic system like the mixed economic pattern. इंडिया और पाकिस्तान ने मिक्स्ड इकोनॉमिक पैटर्न को फॉलो किया, जबकि चाइनीज़ इकोनॉमी एक कमांड इकोनॉमी थी, क्योंकि वहाँ सिंगल पार्टी रूल रहा, माओइस्ट गवर्नमेंट रही. सो इसमें इन्होंने जो सिस्टम अपनाया ऑलमोस्ट सेम था इंडिया और पाकिस्तान का. इसी वजह से 1980s तक तीनों की जो ग्रोथ रेट थी वो लगभग आसपास थी, सेम थी, और पर कैपिटा इनकम भी सेम थी. यहीं से फिर चेंज शुरू होता है, क्योंकि आगे हम डिटेल में बात करेंगे कि 78 में चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए, पाकिस्तान ने 88 में कर दिए, और इंडिया ने हम सभी जानते हैं 1991 में किए. ठीक है. अब हम जो सेकंड इसका सेक्शन है वो है कि चाइना के अंदर जो हिस्टोरिकल पैथ रहा है डेवलपमेंट का वो क्या था. ठीक है. जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि चाइना बिकेम द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949. ओके. चाइना बिकेम पीपल्स रिपब्लिक इन 1949. ओके. वहां पर क्योंकि सिंगल पार्टी रूल है, माओइस्ट गवर्नमेंट में पहले उन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड ये कैंपेन एक स्टार्ट किया 1958 में. इसका मकसद था, उद्देश्य था मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एट कंट्री स्केल. बड़े लार्ज स्केल पर मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था. क्या मकसद था ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन का? मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना. मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन. पीपल वर encouraged टू डेवलप इंडस्ट्री एट देयर बैकयार्ड्स. अपने आंगन के पीछे उनको इंकरेज किया गया कि वो इंडस्ट्री डेवलप करें. दूसरे रूरल एरियाज में कम्यून सिस्टम वॉज इनिशिएटेड. कम्यून सिस्टम क्या था? कलेक्टिवाइजेशन. जैसे रशिया के अंदर आपने पढ़ा, 9th क्लास में पढ़ा होगा जब हम रशियन रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे, स्टालिन ने किस तरह से कलेक्टिवाइजेशन को बढ़ावा दिया था. यानी छोटी छोटी ज़मीनों को एक साथ मिला करके और फिर कलेक्टिव फार्मिंग टुक प्लेस. तो कम्यून सिस्टम स्टार्ट किया गया रूरल एरियाज में. फिर जो इनका GLF कैंपेन था उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां भी थी. फॉर एग्जाम्पल चाइना के अंदर एक ड्रॉट आ गया, अ सीवियर ड्रॉट, जिसमें 30 मिलियन पीपल वर किल्ड. फिर जैसे ही रशिया के साथ चाइना का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ
तो उसने अपने एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट जो वहाँ चाइना में छोड़ रखे थे फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उनको वापस बुला लिया। तो ये कुछ सेटबैक भी उसके आगे आए। फिर माओइस्ट गवर्नमेंट ने 65 के अंदर ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया। ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन जो 66-76 के दरमियान चली। इसमें क्या था कि जो स्टूडेंट्स थे और प्रोफेशनल्स थे, दे वर सेंट टू कंट्री साइड टू लर्न। तो उन्हें जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, कंट्री साइड में भेजा गया टू लर्न एंड अप्लाई। अब अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो चाइना ने इंट्रोड्यूस किए, देखिए यहां पर एक बात और समझनी है कि चाइना वॉज नॉट कंपेल्ड टू इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एज इंडिया वॉज। इंडिया वॉज अंडर द प्रेशर ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक, जो हमने वहाँ से 7 बिलियन जो कर्ज लिया और बदले में हमें अपनी LPG पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना पड़ा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। दिस वाज नॉट द केस ऑफ चाइना। बट चाइना की जो सरकार थी वो ये देख कि वहाँ पर जो पर कैपिटा ग्रेन था वो सेम था 80s में भी जो 50s में था। तो वो जो ग्रोथ रेट थी दैट वाज नॉट अप टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसलिए वहां पर इकोनॉमिक रिफॉर्म 78 में आए और वो फेजेस में आए। पहला है इनिशियल फेज। इनिशियल फेज में उन्होंने एग्रीकल्चर को लिया, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। अब इसमें क्या इन्होंने चेंज किया? सपोज एग्रीकल्चर के अंदर जो कम्यून्स थे दे वर डिवाइडेड इनटू द स्मॉल लैंड्स। अब जो कम्यून सिस्टम, कलेक्टिवाइजेशन जो शुरू किया था, देखिए यहां पर, अब इसको इन्होंने छोटे छोटे लैंड्स में वापस डिवाइड कर दिया एंड दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इंडिविजुअल्स, नॉट फॉर ओन रिसोर्सेज बट फॉर हैविंग कल्टीवेशन। और उनको ये कहा गया कि जो टैक्स डिसाइड किया जा रहा है सरकार की तरफ से वो आप दें, उसके बाद जितना भी प्रोड्यूस होता है यू कैन कीप ऑल द प्रोड्यूस विद योरसेल्फ। फिर आप देखेंगे लेटर फेजेस में यहां पर उन्होंने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स किए। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, इसमें एक जो बड़ा काम हुआ वो ये हुआ कि अब प्राइवेट सेक्टर को भी, जो लोगों ने अपने जो रूरल या जो कलेक्टिव्स रूरल एरियाज में जो अपना प्रोडक्शन कर रहे थे, उनको भी इजाज़त दे दी गई। क्योंकि चाइनीज़ इकोनॉमी एक कमांड इकोनॉमी थी, कोई भी प्रोडक्ट आप बिना गवर्नमेंट की मर्जी के नहीं प्रोड्यूस कर सकते, सब सरकार के कब्जे में था। इवन प्राइसिंग, प्रोडक्शन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑल। तो वहाँ पर अब ये प्राइवेट सेक्टर को परमिट कर दिया गया कि आप भी प्रोडक्शन करें। दूसरे जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, SOEs, जिन्हें हम भारत में क्या कहते हैं, PSEs, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, है ना, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। ओके, दे वर एस्टैब्लिश्ड फॉर कंपटीशन, कंपटीशन के लिए उनको बनाया गया। दे वर कॉम्पिटिटिव इन नेचर। फिर एक और जो इंपॉर्टेंट चेंज आया वो आया ड्वेल प्राइसिंग। ड्वेल प्राइसिंग, ड्वेल प्राइसिंग दोहरी कीमतों का सिस्टम था, दोहरे कीमत प्रणाली थी। क्या थी ये ड्वेल प्राइसिंग? द गवर्नमेंट आस्क्ड द फार्मर्स एज वेल एज द इंडस्ट्रियलिस्ट दैट दे कैन सेल और बाई देयर इनपुट or output at the prescribed rates which is prescribed by the government, but up to the certain limit, यानी फिक्स कर दिया गया कि एक सर्टेन क्वांटिटी आप सरकार की निर्धारित कीमतों पर ही खरीदे और बेचेंगे, उसके बाद यू कैन यूज द मार्केट मैकेनिज्म्स, यानी फिर आप मार्केट फोर्सेस से अपनी प्राइसेस डिटरमाइन कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द ड्वेल प्राइसिंग इज ऑल अबाउट।
So I think you can pause the video to note it down. Then I will tell you about this chapter, the developmental strategies followed by Pakistan. So now we are doing the initiatives taken by Pakistan for its developmental path. पाकिस्तान, जैसा कि हमें पता है कि भारत से ही निकल के 1947 में आज़ाद हुआ और एक अलग डेमोक्रेटिक नेशन बन गया। पाकिस्तान के ने भी भारत की तरह मिक्स्ड इकोनॉमिक पैटर्न को अपनाया। सो फॉलोड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम एज वेल एज इंडिया। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में क्या है, पब्लिक सेक्टर वॉज गिवन द लीडिंग रोल, वेयर एज द प्राइवेट सेक्टर वॉज देयर टू बैकअप द पब्लिक सेक्टर और फॉर प्रोवाइडिंग द सपोर्टिव रोल। लेकिन आज की तारीख में अब क्या हो गया, धीरे धीरे गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करते हुए इंडिया भी, पाकिस्तान भी पब्लिक सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। आगे है रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क इन 50s एंड 60s। इन्होंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो मिड 50s और मिड 60s में पाकिस्तान ने किया कुछ सेलेक्ट एरियाज़ में, जहाँ पर जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस था या फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन था उस पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ा। फिर नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ इन 1970। 1970 में जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ हैं उनका नेशनलाइजेशन हुआ और नेशनलाइजेशन किया गया बाकी सभी इंडस्ट्रीज़ को, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल बड़ा किया गया। यही वो दौर था जब पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस यानी फॉरेन इनकम बहुत ज़्यादा आ रही थी, जिसे हम यूनिलेटरल ट्रांसफर्स कहते हैं, क्योंकि वहाँ की एक बहुत सारी जो आबादी है वो गल्फ़ मिडिल ईस्ट के अंदर काम कर रही थी वर्कफोर्स के रूप में, तो वहाँ से उसे फॉरेन रेमिटेंस ज़्यादा मिल रहा था। इसी दौरान उसे वेस्टर्न नेशंस से फॉरेन एड भी मिली, जिसके चलते जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो फ्लोरिश करने लगी और ग्रोथ रेट उसका बढ़ गया। यही वो दौर था जब 1980 आते आते आप देखेंगे अगर कंपैरेटिव स्टडी में, जहां डेवलप्ड नेशंस भी 5% ग्रोथ रेट के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, चाइना वॉज हैविंग अ डबल डिजिट growth rate and Pakistan was having at the second position and India was at bottom. फिर incentives to the private sector during 70s to 80s, और सरकार ने इस दौरान 70s और 80s के दौरान जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स के लिए बहुत सारे incentives भी रखे। फिर 1988 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अनाउंस कर दिए गए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो कि भारत के अंदर 1991 में आए। इसके बाद हम आगे बात करते हैं जो सैलिएंट डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स है इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स में अगर हम देखें तो पॉपुलेशन वाइज इंडिया और चाइना दोनों टॉप पर हैं। चाइना इज़ ऑन द टॉप एंड इंडिया इज़ लाइंग एट द सेकेंड टॉप। ये 2015 के अकॉर्डिंग डेटा अभी हमारे पास है, तो फिगर्स आर इन मिलियंस। 1311 millions means if we convert it into the crores, so it becomes 131 crores and 10 lakh. So लगभग 131 करोड़ भारत की आबादी हो गई और 137 करोड़ चाइना की है। आप इसे इस तरह से समझें कि दुनिया में अगर 6 लोग घूम रहे हैं तो उसमें से हर 6 लोगों में से एक इंडियन है और दूसरा चाइनीज़ है। अगर आप पाकिस्तान की आबादी की बात करें तो वो बहुत छोटा है, लगभग 1/9 इंडिया और चाइना की जो आबादी है उसका 1/9 जो है वो पाकिस्तान की आबादी है। इसके बाद आप एरिया वाइज देखें तो चाइना के पास लार्जेस्ट एरिया है, सेकंड लार्जेस्ट इंडिया के पास है और फिर पाकिस्तान के पास है। डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर में इंडिया इज ऑन टॉप। ये देखिए 441 पीपल वर लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर, वेयर एज इन चाइना इट इज ओनली 146 एंड इन पाकिस्तान इज लाइंग ऑन सेकेंड पोजिशन, 245 पीपल वर लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर। एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो पाकिस्तान इज ऑन टॉप
पाकिस्तान के अंदर जो है वो एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है सबसे ज़्यादा है। उसकी वजह है वहाँ की फर्टिलिटी रेट भी आप देखें 3.7 है, जो हाईएस्ट है अमंग दिस थ्री। और इंडिया की जो है वो 1.2 है, ये अगेन अलार्मिंग है। और चाइना की जो है वो बहुत कम है। स्कॉलर्स ये मानते हैं कि लो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन की वजह है चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म। वहाँ पर जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई गई वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म की, उसके चलते अब क्या हो गया कि धीरे धीरे जो पिरामिड है चाइना का, पॉपुलेशन पिरामिड है, वो बिगड़ने की तरफ बढ़ गया है। वहाँ ओल्ड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और जो यंग वंस हैं या इन्फेंट्स हैं उनकी संख्या कम है। इसलिए अब उसको अपनी पॉलिसी कंप्रोमाइज़ करनी पड़ी। सिंगल चाइल्ड नॉर्म से अब वो 2 चाइल्ड नॉर्म की तरफ आ गया है। आगे आप सेक्स रेशियो में देखेंगे तो ऑल 3 आर लैगिंग बिहाइंड। Though Pakistan is in the better condition as compared to rest of these two, India is having the alarming situations, क्योंकि तीनों ही कंट्री के अंदर जो मेल चाइल्ड है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है, इसीलिए यहाँ सेक्स रेशियो जो है वो नंबर ऑफ फीमेल्स इन पर 1000 मेल्स में निकाला जाता है। तो ये 929 भारत के अंदर है, 941 चीन में है और 947 पाकिस्तान में है। स्लाइटली बेटर इन पाकिस्तान बट स्टिल इट इज़ लैगिंग बिहाइंड। और फर्टिलिटी रेट की मैं बता चुका कि हाईएस्ट है पाकिस्तान के अंदर और सेकंड हाईएस्ट है इंडिया में, और चाइना इज़ हैविंग द लोवेस्ट। और अर्बनाइजेशन अगर आप देखें तो 33% जो है वो इंडिया के अंदर है, ये सबसे कम है। 56 हाईएस्ट है चाइना में और 39 है पाकिस्तान में। सो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें, देयर आर सर्टेन एरियाज वेयर पाकिस्तान इज लीडिंग, लाइक द फर्टिलिटी रेट, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, the peoples who are living in urban areas, they are more in Pakistan in comparison to even the sex ratio is better in Pakistan in comparison to India. So I think you can pause the video to note it down, then I will tell you the GDP growth rate trends in India, China and Pakistan. So learners, अभी हम बात कर रहे हैं ट्रेंड्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट अमंग दीज 3 नेशंस। जीडीपी ग्रोथ रेट का पैटर्न कैसा रहा है, हमने ये 2 वर्ष लिए हैं, 1980-90 का एक दशक है और एक ये 15-17 का पीरियड है। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 5.7% 80-90 के बीच में रहा और 15-17 में ये 7.3% है। आपको मालूम होगा कि क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एंटीसीडेंट सर्कमस्टांसेस हैं, कोविड-19 की वजह से पिछले क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 के अंदर हमारी ग्रोथ रेट जो है वो माइनस में चली गई थी 23.7, और उसके बाद सेकंड क्वार्टर का जो अभी तक ऑफिशियल डेटा हमारे पास आया है वो भी माइनस में ही है 7.6। लेकिन ये केवल इंडिया का केस नहीं है, सभी डेवलप्ड नेशंस, ऑलमोस्ट द होल वर्ल्ड इज़ स्ट्रगलिंग अलॉट। सो ये एक अलग सिचुएशन है। ये और बात है कि इस दौरान में भी चाइनीज़ इकॉनमी इज़ डूइंग वेरी वेल और पॉजिटिव उसने ग्रोथ रेट अपनी रखी हुई है 2.6 समथिंग, अभी उसकी जो सेकंड क्वार्टर का डेटा आया है उसमें आई है। और इवन पाकिस्तान इज़ ऑल्सो मेंटेनिंग द 0.5% पॉजिटिव ग्रोथ रेट। सो ये एक अलग हालात हैं, बट हमने जो ये कंपेयर किया है एज फार एज योर सिलेबस इज़ कंसर्न 18-90 और 15-17 के दौरान की बात है, तो उसमें 7.3% इंडिया का रहा, चाइना की 10.3, 6.8। मैंने बताया था 80-90 में जहां डेवलप्ड नेशन भी 5 पॉइंट के लिए और सिंगल फिगर के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, चाइना वॉज हैविंग द ग्रोथ रेट इन डबल डिजिट। और पाकिस्तान के अंदर ये 6.3 था, फिर ड्रास्टिकली उसके बाद क्या हुआ, यहाँ डाउनफॉल आ गया। जानकार मानते हैं कि इस डाउनफॉल की वजह पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, और उसके अलावा क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया था कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो रेवेन्यू है वो रेमिटेंस, फॉरेन रेमिटेंस से आता था, फिर उसने जो इंटरनेशनल लोन लेता रहा और प्रॉब्लम आई उसको रीपे करने में। दूसरे वहाँ एग्रीकल्चर जो है वो बहुत परिवर्तनशील रही
इट वॉज चेंजिंग इन नेचर, ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज रेस्ट्रिक्टेड अप टू सर्टेन एरियाज। सो कई बार वो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था वो उसकी क्रॉप्स पर डिपेंड करता था कि अगर आपका जो हार्वेस्टिंग बढ़िया से हो गई है, वो सीजनल था क्योंकि, तो फिर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो फ्लोरिश करेगा, इकोनॉमी फ्लोरिश करेगी। अदरवाइज वो क्योंकि वॉलेटाइल था, एग्रीकल्चर वॉज वॉलेटाइल इन नेचर, सो इसके लिए प्रॉब्लम्स फिर रहती थी और वहाँ फिर पॉवर्टी भी बढ़ने लग गई इंसिडेंटली जो 90s के बाद में, और आपकी ग्रोथ रेट भी घट गई। फिर आप देखेंगे कि सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी के अंदर, सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन, इन दोनों को हमें साथ में समझने की ज़रूरत है। सेकंड जो मैंने टेबल दी वो है शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी सेक्टोरल शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये, तो कि किस सेक्टर का कितना शेयर था एम्प्लॉयमेंट के अंदर और जीडीपी के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन कितना था। इसको ऐसे समझेंगे, एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल 17% है इंडिया में, जबकि उसने ऑक्यूपाइड किया हुआ था, एकोमोडेट किया हुआ था कितनी पॉपुलेशन को, 42.7% को। सो इतनी पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 17% ही कंट्रीब्यूशन कर पा रही है जीडीपी में। ये मेजर प्रॉब्लम है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट से जूझता है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है कि मोर पीपल आर एंगेज्ड वेयर एज द रिक्वायरमेंट इज लेस। उसके बाद हम देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, अभी मैं इंडिया का आपको बता रहा हूँ, तो उसमें 30% उसका शेयर है जीडीपी के अंदर। ये माना जाता है कि कोई इकोनॉमी कितनी डेवलप है उसका पता उसके इंडस्ट्रियल सेक्टर से लगता है। सो 30% शेयर जो है वो जीडीपी में इंडस्ट्री का है इंडिया में, और इसने एकोमोडेट किया हुआ है 23.8% पॉपुलेशन को। यहाँ भी एक कंसर्न है कि 30% शेयर होते हुए ये इतनी कम पॉपुलेशन को एकोमोडेट कर रहा है, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहा जितना रिक्वायर्ड है। फिर आप सर्विसेज सेक्टर को देखेंगे तो सर्विसेज सेक्टर के अंदर कंट्रीब्यूशन इसका हाईएस्ट है 53% इंडियन इकोनॉमी में जीडीपी के अंदर, और इसने एकोमोडेट किया हुआ है 33.5% लोगों को। सो जो मेजर इश्यूज़ हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भारत के आगे वो है कि इसके जो दोनों सेक्टर हैं इंडस्ट्री और सर्विसेज, दे आर फेल टू एकोमोडेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। फिर आप चाइना का देखें तो चाइना के अंदर सबसे कम कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का है 9%, और उसने एकोमोडेट किया हुआ है 17.5% पॉपुलेशन को। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट डबल कह सकते हैं। और 43% ये देखिए, इसके दोनों ही सेक्टर हाईएस्ट हैं, 43-48। इंडस्ट्रियल सेक्टर इज़ प्रीटी रिच अमंग ऑल दीज थ्री। यहाँ इंडिया में 30 है, यहाँ पाकिस्तान में 21 है, लेकिन चाइना का ये हाईएस्ट है 43%। इसीलिए चाइना जो है तीनों इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा डेवलप है। उसके बाद ये एकोमोडेट करता है 26.5% पॉपुलेशन को, वर्कफोर्स को, और फिर 48% सर्विसेज सेक्टर से आता है जो कि 56% लोगों को एकोमोडेट कर रहा है। सो यहाँ भी डिफरेंस है। और फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर 25% शेयर जो है वो एग्रीकल्चर का है, और इसने 42% पॉपुलेशन को एकोमोडेट किया हुआ है। यहाँ भी डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा है, ये ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। चाइना के अंदर भी ये ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, और इंडिया के अंदर ये ऑलमोस्ट ट्रिपल हो रहा है। सो इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है, चाइना और पाकिस्तान में लगभग एक जैसी कह सकते हैं। फिर इंडस्ट्री के अंदर 21% जो शेयर है वो आपका आता है किससे, जीडीपी के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर का शेयर है 21%, जो 3.7 को ही एकोमोडेट कर रहा है। बहुत बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान इकोनॉमी के आगे कि 21% शेयर इंडस्ट्री से आ रहा है, लेकिन केवल 3.7% पॉपुलेशन को ही वो एकोमोडेट कर पा रहा है। ये मेजर कंसर्न है। फिर तीसरा, आप यहाँ सर्विसेज में अगर देखें तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, 54% जीडीपी में शेयर है, और 54.3% जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट
कर रहा है। अब देखें तो तीनों ही इकोनॉमी में इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर जो है वो लेस प्रोपोर्शन जो है वो वर्कफोर्स को, स्पेशली इंडस्ट्री जो है वो एकोमोडेट कर रही है, और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया और पाकिस्तान में है वो तो बहुत ही लो है, 23.8 एंड 3.7 ओनली। So this is how the sectoral share of employment in India, China and Pakistan, as well as the sectoral contribution towards the GDP growth rate. So this is what for today's class, and the remaining part we will be discussing in our next class, and that in this way our syllabus for class 12th economics will be finished off. So we have one more class for completing the syllabus of Indian economic development. Till then, goodbye.